Hello, kids. How are you all? I hope you are happy, healthy, and safe. Okay, so today we'll be doing First Flight, class 10th book, and we'll be doing the second chapter from it, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It is written by Nelson Rolihlahla Mandela. इनका पूरा नाम था, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम था. Now, before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. So, apartheid क्या है? एक political system है जिसमें लोगों को रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि कुछ लोगों को ये राइट्स हैं, कुछ लोगों को कुछ और राइट्स हैं. ठीक है. Can you say which of these three countries named below had such a political system until very recently? South Africa है ना, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत ज़्यादा. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison, so he was 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. So recent है ना, 1994 में इनकी elections हुए, democratic elections. उससे पहले कितना ज़्यादा वहाँ पे टेंशन था. And Mandela became the first black president of a new nation. So Mandela and उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने वहाँ पे अपार्थेड के खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और अभी 1994 में ही उनका पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ. And Mandela became the first black president of a new democratic nation. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी नेल्सन मंडेला ने, और उन्होंने 30 इयर्स प्रिजन में बिताए थे. तो उनकी बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी रही है, मतलब 30 इयर्स तो प्रिजन में बिताए, उससे पहले फाइटिंग की होगी है ना, तो फ्रीडम फाइटिंग की होगी, आज़ादी की लड़ाई. तो इट वॉज़ अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ना, बहुत लंबा रास्ता था उनकी फ्रीडम का, लंबा सफ़र था उनका. तो उन्होंने उसके ऊपर बुक लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी, और उसका एक छोटा सा पोर्शन इसमें है. और उसमें उन्होंने इसमें जो एक्सट्रैक्ट है उसमें जो इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी, जब ये प्रेसिडेंट चुने गए थे, उस वक्त जो इनाग्रेशन हुआ था वो एक्सप्लेन किया हुआ है. वो वाला पोर्शन उन्होंने उठाया है ऑटोबायोग्राफी से. Can you guess what the equation might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. तो क्या था वो न्यूज़ आइटम? मंडेला becomes South Africa's first black president. तो जैसे मैंने अभी बताया कि जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी, ये उसी के बारे में एक्सट्रैक्ट है. तो ये न्यूज़ छपी थी BBC में 10th May 1994 को. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. So 50% से भी ज़्यादा वोट मिले उनको. 400 में से 252 सीट्स जीती थी उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. And he became the first black president of South Africa. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो जो यहाँ पे इनाग्रेशन हुई थी, एक यूनियन बिल्डिंग्स थी, एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, एंड वहाँ पे इनाग्रेशन हुआ था. तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला ने, मतलब बहुत 140 कंट्रीज़ से पॉलिटिशियंस और इम्पोर्टेंट पीपल आए थे वहाँ पर. और नेल्सन मंडेला ने बोला था कि अब कभी भी इस हमारे लैंड पर कोई किसी का, मतलब ऑपरेशन, कोई किसी की ज़ाति बर्दाश्त नहीं करेगा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria
followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating. तो अब कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोगों ने इकट्ठे ही वहाँ पर सेलिब्रेशन मनाया. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So 1 lakh South African men, women, children थे जिन्होंने वहाँ पर सॉन्ग गाए, डांस किया. 10th May 1994 है ना. ओके. 10th May dawned bright and clear. तो जो वो सुबह हुई 10th May की, वो एकदम ब्राइट एंड क्लियर थी. नाउ ब्राइट एंड क्लियर थी बिकॉज साफ आसमान था, बादल वादल नहीं थे, एंड अदरवाइज ऑल्सो ब्राइट एंड क्लियर बिकॉज आज़ादी की सुबह थी वो. उससे बेटर क्या हो सकता है. आपको कोई कहीं बंद करके रखे और फिर आपको किसी दिन बाहर निकलने का मौका मिले तो वो दुनिया का ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा. सो इट वॉज अ ब्राइट एंड क्लियर डे. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So, उससे पहले के दिनों में मैं जो अलग अलग कंट्रीज से पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए थे उनसे घिरा हुआ था. और the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो साउथ अफ्रीका में कभी इतने अलग अलग कंट्री से इतने लोग नहीं आए थे, तो ये पहला ऐसा मौका था. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. Now what's an amphitheater? Amphitheater में क्या होता है, रूफ नहीं होती, ठीक है, और रूफ नहीं होती और चेयर्स वगैरह भी नहीं होती. बैठने के लिए ना सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, तो सीढ़ियों पे बैठते हैं. तो ये उस वाली मूवी में भी था ना, रंग दे बसंती मूवी में कॉलेज जो दिखाते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जब वहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे होते तो वहाँ यही था ना कि सीढ़ियों पे बैठे होते हैं बच्चे. ये इनफैक्ट माधुरी दीक्षित की जो नई मूवी, जब माधुरी दीक्षित की भी मूवी आई थी नचले, उस वाले में भी ऐसे ही था. उनका जहाँ वो प्ले हुआ था लैला मजनू वाला, तो वहाँ पे ऑडियंस ऐसी सीढ़ियों पे बैठी हुई थी. वो सीढ़ियाँ इस तरह से लगी हुई थी कि सब आराम से देख पाएँ. सो उसको बोलते हैं एम्पी थिएटर. सो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो ये जो सेरेमनी हुई, ये बहुत ही सुंदर सा सैंडस्टोन से बना हुआ था. ये एम्पी थिएटर सैंडस्टोन यूज़ हुआ था इसकी कंस्ट्रक्शन में. तो एंड इट वाज इन यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. तो वहाँ पे ये था, लेकिन यहाँ पे पहले तो हमेशा वाइट्स का ही, जो वाइट्स थे ब्रिटिशर्स कह दो, तो हमेशा उनका ही रहता था. अंग्रेज़ लोग ही वहाँ पे उनको ये प्रेसिडेंट वगैरह वो ही रहे थे. कभी कोई ब्लैक्स को राइट्स ही नहीं थी कि यहाँ पर आए, यहाँ पे एड्रेस करे कुछ भी. तो ये पहला मौका था. और इस बार इट वॉज़ लाइक अ रेनबो बिकॉज वाइट्स भी थे, ब्लैक्स भी थे, अलग अलग कलर्स के, जैसे ब्राउन स्किन, बेसिकली स्किन टोन के बारे में डिस्कस किया हुआ है. तो हर तरह के, मतलब कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ही नहीं, हर कलर के स्किन के लोग वहाँ पे थे, सिटिंग टुगेदर इन ऑन दिस डे which was the formation of the first democratic non-racial South African government. ठीक है, okay. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. तो जिनानी उनकी डॉटर थी, वो भी साथ में आई थी. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. तो मिस्टर डी क्लर्क को सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया था. तो पहले उनको बोला, फिर जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थाबो मबीक. देन थाबो मबीकी was sworn in as first deputy president.
When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. तो पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, जैसे होता नहीं, आप कहीं भी प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे रेस में आप कुछ आए हो तो पहले थर्ड प्राइज़ मिलता है, फिर सेकंड प्राइज़ मिलता है, फिर फर्स्ट प्राइज़ मिलता है. इनफैक्ट ये जो कॉम्पिटिशन दिखाते हैं इंडियन आइडल वगैरह, डांस वगैरह के जो होते हैं, तो पहले ऐसे ही होता है, थर्ड वाले को, फिर सेकंड वाले को, फिर फाइनल वाले को बिल्कुल लास्ट में अनाउंस करते हैं. तो वही हुआ होता है बेसिकली कि पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट उनको वो पोडियम पे बुलाया, फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट को, और उसके बाद प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला को, और उन्होंने फिर सबके सामने ये स्पीच बोली. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. सो मतलब बेसिकली हम वो एक तरह से सबको विटनेस बना रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि देखो हम विटनेस बन रहे हैं इस ग्लोरीफुल डे के लिए. जैसे पहला ये एक तरह से जो साउथ अफ्रीका का नया जन्म हुआ है, जिसको न्यू बर्थ मिला है, तो वी ऑल आर विटनेस टू इट, वी ऑल आर experiencing it. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. तो ये जो उनका बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा था साउथ अफ्रीका का, इतना उन्होंने बुरी तरह से झेला है ब्लैक एंड वाइट के डिस्क्रिमिनेशन को, तो अब वो उस सब से निकल कर अब एक नई सोसाइटी बना रहे हैं. तो ये दुनिया के लिए एक प्राउड फील करने वाली बात है. तो ह्यूमैनिटी एज अ होल, मतलब मानवता के लिए ये एक गर्व का अनुभव होना चाहिए. इस चीज़ के लिए मानवता को अनुभव होना चाहिए गर्व का, बिकॉज़ इतनी बड़ी फ़ाइट करी है उन्होंने, फ्रीडम फाइटिंग की है इतनी ज़बरदस्त. तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सबको इक्वल राइट्स मिल जाएं, ये सबसे बड़ी फ़ाइट है दुनिया में. तो वो कोई अगर जीत पा रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है. वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. कि हम लोग जो पहले आउटलॉस थे, कि हम लोगों को मतलब इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि मतलब जैसे कि हटो यहाँ से, छी तुम लोग कहाँ से आ गए हो, दूर हो जाओ. तो उनको किसी भी तरह के राइट्स नहीं थे, उनको बहुत ही नीची नज़रों से देखा जाता था. तो उन लोगों को मौका मिला कि वो 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस को, डिग्नेटरीज़ को अपने यहाँ इनवाइट कर सकें. तो ये बहुत उनके लिए प्रिविलेज की बात है. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of a country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. So now he is thanking all the international politicians and dignitaries कि we all are together in this because together we are celebrating justice. कि हमेशा की सबके साथ हमेशा इंसाफ होना चाहिए, हर जगह शांति होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, एंड हर किसी को एक इज़्ज़त से जीने का हक है. ह्यूमन डिग्निटी का हर किसी को हक है, हर ह्यूमन को हक है कि वो डिग्निटी से जिए. तो ये मिल रहा है हमको आज, इसका ही हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग सब इसमें साथ हैं. वी हैव at last achieved a political emancipation. सो एट लास्ट हमको मिल ही गया पॉलिटिकल इमांसिपेशन, मतलब हर तरह की रिस्ट्रिक्शन से हम आज़ाद हो चुके हैं पॉलिटिकली भी. तो अपने सोसाइटी में तो इंसान एक दूसरे को हक देता ही है, लेकिन पॉलिटिकली अगर मिल जाए तो एक रूल बन जाता है, रूल ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड. वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो हम इकट्ठे अब प्लेज कर रहे हैं कि हम किसी को भी पॉवर्टी में नहीं रहने देंगे, पॉवर्टी की बंदिश से आज़ाद करेंगे. डिप्रीवेशन इज़ डिप्राइव करना, किसी को उस चीज़ से दूर रखना. तो किसी को ऐसा भी नहीं होगा कि किसी चीज़ से उनको दूर रखा जा रहा है, उससे भी हटाया जाएगा. हर किसी को मतलब सब कुछ मिलेगा जो उसको उसका हक है. उनका जो भी सफरिंग है जेंडर के बेसिस पे या डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी और बेसिस पर, तो
हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन, हर तरह की सफरिंग को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल एवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. और अब कभी भी इस सुंदर सी इस ब्यूटिफुल लैंड में कोई भी इंसान को दूसरे इंसान की तरफ से ऑपरेशन नहीं झेलना पड़ेगा, गलत बिहेवियर नहीं झेलना पड़ेगा, दबाव किसी तरह का नहीं झेलना पड़ेगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. तो अब कभी भी ये जो हमारा ह्यूमन अचीवमेंट हमने किया है, हमने जो अचीवमेंट किया है, जस्टिस जीता है, पीस सारे में है, ह्यूमन डिग्निटी मिल गई है हमको, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये अब हमेशा रहेगा. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. सो हमेशा सब लोग आज़ाद रहें, किसी पे किसी तरह की कभी कोई बंदिश नहीं रहे. गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो अभी इस पार्ट में यही करते हैं, है ना. इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डू द रिमेनिंग चैप्टर. ओके ओके, बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, टेक केयर.